400 میں فروخت کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ ملکی اداروں نے گواہی دی کہ ملک میں سب سے زیادہ کرپشن آپ کے دور میں ہوئی۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے آپ ہی واپس لائے۔ ماضی میں بھی ہم نے مشکل حالات کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ ہمارے سامنے صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ وطن عزیز کو خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان بنانا ہے۔ ہم ہر مشکل فیصلہ کرنے کو تیار ہیں۔ ہر ممکن وہ کام کریں گے جس سے قومی ترقی کا سفر تیزی سے آگے بڑھ سکے، نااہلی اور کرپشن کی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مزید کہا کہ نواز شریف کے دور میں ملک عظیم ترقی کر رہا تھا، تب اس شخص نے دھرنے کا ڈرامہ رچایا تھا۔ اس وقت چینی صدر پاکستان کا تاریخی دورہ کرنے تشریف لا رہے تھے، لیکن اس شخص کی ہٹ دھرمی اور دھرنے سے یہ تاریخی دورہ تاخیر کا شکار ہو گیا تھا۔ عوام کی حفاظت یقینی بنانا حکومت کا اولین فرض ہے، اس پر سمجھوتا کیا ہے نہ کریں گے۔ سابقہ حکومت میں جن حقائق پر پردہ ڈال رہی ہے وہ آج یاد دلانا چاہتا ہوں۔ IMF سے معاہدہ ہم نے نہیں، آپ نے کیا تھا۔ سخت شرائط آپ نے مانی تھی، ہم نے نہیں۔ عوام کو مہنگائی کی چکی میں آپ نے پیسا، ہم نے نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی مخالفین کے لیے پیغام ہے کہ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا دیں جس میں اختلاف رائے کو دشمنی نہ سمجھا جائے، جہاں تنقید کو حوصلے سے برداشت کیا جائے، جہاں قومی خدمت ہی سیاست کا اصل معیار ہو۔ درسگاہوں کے دروازے کھل جائیں، نفرت گاہوں کے در بند ہو جائیں، جہاں اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہوں، جہاں مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ ہو، رزق کی فراوانی اور آسانی ہو، جہاں عدل باعث فخر، جہاں ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ شہباز شریف کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ حکومت سنبھالتے ہی میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ختم کر دیا، جس کا مقصد میڈیا کی آزادی چھیننا تھا۔ میں نے بطور اپوزیشن لیڈر میثاق معیشت کی تجویز پیش کی تھی، جسے حقارت سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا آغاز کر رہا ہوں تاکہ آئندہ کوئی بھی حکمران ذاتی سیاسی مفادات کے لیے قومی معیشت کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بدامنی کی صورت ایک اور چیلنج درپیش ہے۔ یہ فتنہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ ہم نے صوبوں کے ساتھ مل کر نیشنل ایکشن پلان کی ازسر نو بحالی شروع کر دی ہے۔ قومی مفادات سے جڑے منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے بھی یہ نہایت ضروری ہے۔ پونے 4 سال میں میڈیا کی آزادی چھین لی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ داخلی محاذ کی طرح خارجی محاذ پر بھی پونے 4 سال بھاری ثابت ہوئے۔ ہر مشکل میں ساتھ نبھانے والے دوست ممالک کو ناراض کر دیا گیا۔ اب ہم نے دوست ممالک سے بحالی کا کام شروع کر دیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے بھارت کی ذمہ داری ہے کہ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو ختم کرے تاکہ بامقصد بات چیت سے جموں و کشمیر سمیت تمام متنازع امور کو حل کرنے کی طرف ٹھوس پیش رفت ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں مزید کہا کہ ملک کو مشکل صورتحال میں سابقہ حکومت نے پھنسایا ہے۔ آج یہ مشکل فیصلہ ملک کو بحران سے نکالنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ عوام کے لیے پیٹرول پر ریلیف پیکج دینے جا رہے ہیں۔ 1 کروڑ 40 لاکھ غریب ترین گھرانوں کو 2000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہ اس مالی امداد کے علاوہ ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ کی مد میں دی جا رہی ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بھی اس پیکج کو شامل کیا جائے گا۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ تیل پیدا کرنے والے ملکوں سے لے کر ترقی یافتہ ممالک تک سب اس مشکل معاشی صورتحال سے دوچار ہیں، لیکن سابق حکومت نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے سبسڈی کا اعلان کر دیا، جس کی قومی خزانے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہارون رشید صاحب فرمائیے گا، وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا ہے، انہوں نے اس خطاب میں قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو کیا نئی چیز نظر آئی اس خطاب میں؟ میں تو خطاب جو ہے نا مجھے سوال کریں آپ، ہارون رشید صاحب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مشکل فیصلے ہم نے لیے ہیں یہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے لیے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ دوست ممالک کو ناراض کیا ہے عمران خان نے اپنے دور حکومت میں۔ دیکھیے، دوست ممالک کو کوئی ناراض انہوں نے نہیں کیا۔ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم امریکہ سے نہ لڑ سکتے ہیں نہ اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں،
عمران خان نے ایک آزاد خارجہ پالیسی کی کوشش کی، اور جب وہ روس گیا ہے جس سب سے زیادہ اعتراض ہے تو وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کی پوری سینکشن کے ساتھ گیا ہے، اور جب امریکیوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا ڈونلڈ لو نے کہ اپنا تحریک اعتماد کو کامیاب ہونا چاہیے، جبکہ وہ پیش بھی نہیں ہوئی تھی، تو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہ تھے اور دوسری ساری آئی ایس آئی کا سربراہ بھی تھا، تو انہوں نے یونانی مسئلے کہا کہ یہ مداخلت کی گئی ہے، تو کس بنیاد پر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ دو ممالک سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی؟ پھر اس نے یہ کہا کہ ہم غلامی نہیں ان کی اختیار کر سکتے، دوستی چاہتے ہیں، تو اس میں تعلقات خراب کرنے کا، اور قوم نے ان کے موقف کو تسلیم کیا۔ جو اس کے بعد سروے ہوئے ہیں اس میں تو شہباز شریف صاحب کو تو 74% پاکستانیوں نے ریجیکٹ کیا ہے، عمران خان کو تو نہیں کیا ریجیکٹ۔ اس بات کا کیا مطلب؟ ہارون صاحب یہ بھی فرمائیے جی اپنی خارجہ پالیسی نہ بنائے۔ 30% کم پہ وہ تیل دے رہے تھے، اب پروپیگنڈا مشینری بڑی استعمال ہو رہی ہے، وہ میٹنگ ہوئی ہی نہیں تھی۔ بھائی انڈیا کو وہ دے رہے ہیں تو پاکستان کو جو امریکہ کا اسٹریٹجک کلاس ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اس کے بعد 2 میٹنگیں ہوئی ہیں یہاں پہ، ظاہر ہے بندوبست کرنا تھا، اپریل میں پہلے جہاز آنا تھا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے جو ہمارے ادوار تھے اس میں نواز شریف نے ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا، بجلی کے پروجیکٹس لگائے، ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، لیکن عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جو نواز شریف کے تمام ادوار کا ڈیٹا نکالا جائے میرے سامنے نہیں ہے obviously اس وقت، زیادہ سے زیادہ اور جو شرح ترقی کے نکلے گی وہ 4% نکلے گی، میرا خیال ہے اس سے کم ہوگی۔ ان کے پہلے دور حکومت میں تو بالکل ہی 2% تھی، اور عمران خان کا دور کورونا کے باوجود اب 6% پہ پہنچ گئی تھی۔ تو بنیادی ڈیٹا دیکھا جاتا ہے کورونا میں انڈیا کی -7% ہو گئی، پاکستان کی جو ہے وہ 5% بھی رہی ہے اور پھر 6% کے قریب پہنچ گئی، 5.9%۔ تو یہ تو ایک ریٹورک ہے، اب کوئی آدمی بڑے بڑے فکرے بول رہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اور جو سڑکیں انہوں نے بنائی، یہ موٹر وے ہے مثال کے طور پر لے لیں جو لاہور سے اسلام آباد موٹر وے آتی ہے، پنڈی آتی ہے، یہ 70 کلومیٹر منیمم زیادہ ہے۔ ابھی موٹر وے سے فاصلے کم ہوتے ہیں، بڑھتے تو نہیں ہیں نا، اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹس بنائے ہیں، اور اس میں مطلب یہ جتنا خرچ ہونا چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ خرچ ہوا ہے۔ یعنی آپ اس کی ماہرین سے تصدیق کر لیں، اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو میں جرمانہ ادا کرنا معافی پہ مانگوں گا۔ آدھا انچ سونے کی پٹری سڑک بنائی جا سکتی تھی جتنا موٹر وے پہ خرچ ہوا ہے، اتنی ہی چوڑی۔ تو یہ ریٹائر کا کیا جواب دیا جائے؟ ملک نے کیا ترقی کی ہے؟ عمران خان صاحب کو تو ملے 3.5 سال کورونا کے ساتھ، ان کو ملا اتنا طویل عرصہ، تو اس کا کیا موازنہ ہو سکتا؟ ٹھیک ہے ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار راؤ خالد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ راؤ خالد صاحب فرمائیے گا، وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا ہے، قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے، اور جو پیٹرول اور مہنگائی ان کی جانب سے بڑھائی گئی ہے اس پر بھی قوم کو وضاحتیں دی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کے خطاب سے؟ دیکھیں ایک تو پریشر ہے نیچرلی اس کا IMF کا، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا تھا۔ دوسرا عوامی پریشر نیچرلی ہے، اس میں انہوں نے وہ ایک ہاتھ سے دے کے تو دوسرے ہاتھ سے واپس لینے والی بات جیسے ہوتی ہے، سبسڈی وڈرا کی ہے اور دوسرے ہاتھ سے سبسڈی سلیکٹڈ گروپ کو دے رہے ہیں، وہ اس کو اچیو کرنا یہ ماہرین کا خیال ہے بہت مشکل ہے۔ آپ جو پیٹرول کی ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے وہ چاہے احساس پروگرام کے ذریعے دیں گے، جو بھی ان کا پلان ہو، اس میں بہت مشکل ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں، جن کے پاس بائک ہے، رکشہ ہے، ان کو آپ دے پائیں۔ اس میں فیک آ جائیں گے، جیسے بیسک انکم سپورٹ پروگرام میں 8 لاکھ کے قریب فیک لوگ نکل آئے تھے، اور بڑے بڑے افسروں کے یعنی بنے ہوئے تھے کارڈز اس میں۔ تو اس طرح سے یہ بہت مشکل ہے، یہ ایک پولیٹیکل گمک اس کو میکسیمم کہہ سکتے ہیں۔ ایک طرف سے واویلا ڈالا ہوا ہے، خسارہ بڑھ گیا جی، ریکارڈ خسارہ ہونے جا رہا ہے، معیشت تباہ ہو گئی، دوسری طرف سے آپ 28 ارب کا پیکج نکال کے لے آئے ہیں، اس کے ساتھ آپ 28 ارب کے پیکج کی آپ آگے مزید کوئی اور پیکج بھی لے کے آئیں گے۔ یقیناً اگر پولیٹیکلی انہوں نے
कंटिन्यू करना है। जो सबसे बड़ी बात जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सारा दिन खबरें मुख्तलिफ सोर्सेज से चलाई गई कि जी हुकूमत ने अपना 1.5 साल पूरा करने का फैसला कर लिया, तो वज़ीर आज़म आज खिताब में उसको बताएंगे। सर वैसे तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की, पॉलिटिकल कोई बात नहीं की, उन्होंने वही बात की है जो आज से 3.5 पौने 4 साल पहले असेंबली में की थी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। और तो कोई ऐसी कोई पॉलिटिकल बात कोई ऐसी नहीं कि जिससे आपको ये अंदाजा हो कि ये कोई आगे चलने का इरादा रखते हैं। लग यही रहा है कि कुछ ज्यादा दिन की बात नहीं है। सियासी फायदा जो उठाना चाहते हैं इस वक्त, जो 2 महीने 3 महीने इनके पास होंगे मैक्सिमम, उसमें वो उठाने के लिए ये सारी कार्रवाई डाली जा रही है। जी ठीक है, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा राव खालिद साहब। हारून साहब, ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए एक पूरा प्लान देते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि आइंदा बजट में भी कुछ सब्सिडीज शामिल होंगी, तो आपको लगता है कि यह हुकूमत पूरा अपना टेन्योर करने जा रही है? नहीं, ये बहुत मुश्किल है टेन्योर पूरा करना। यानी जो इमरान खान से जो जहाँ तक हमारी मालूमात है कहा गया है कि किए जा सकते, मतलब वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो डेट तो तय नहीं हुई। लेकिन ये है कि पूरा कैसे करेंगे जी? एक पार्टी का रूट जाए, 14 पार्टियां हैं, एक पार्टी का रूट जाए, मतलब चौधरी शुजात ही तय कर लें तो खत्म हो जाएगी। एमकेएम रूट जाए, बाप ने इशारा भी किया बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने। तो बाकी ये है कि ये करेंगे और वो फलां करेंगे, तो घर में नहीं दाने और अम्मा गई खुराने। पैसे कहाँ से लाएंगे? कहाँ है पैसे जो जिससे ये सब कुछ कर देंगे? ये इनका तरीका है शोबदाबाजी का। 8 डैम शुरू किए इमरान खान ने, 8। उसका नतीजा तो बाद में निकलेगा, डैम बनने में 10-12 साल लगते हैं। तो इन्होंने सड़कों के, इंडिया में तो कोई सड़कों का इस तरह का जाल नहीं है। इंडिया की शहर तरक्की हमसे ज्यादा थी। सड़कें तो उस वक्त बनाई जाती हैं जब उनकी जरूरत हो, प्रायोरिटीज होती हैं। ये तो अपनी सियासी जरूरतों के लिए बनाते हैं। मतलब लाहौर में तो चलिए कुछ जरूरत थी, लेकिन असल में तो अपने वोटों के लिए उन्होंने बनाई अपना वो जो जंगला बस सर्विस है। पिंडी में तो हरगिज कोई जरूरत नहीं थी, कभी किसी ने मुतालबा ही नहीं किया। मुल्तान में कतन कोई जरूरत नहीं थी, वो 200 अरब रुपए इस पे सारे लग गए। ट्रेन जो है वो 250 अरब रुपए उस पर लग भी गए, और उसमें सब्सिडी में पता नहीं कितना पैसा जाएगा। भाई जो इतना बड़ा कर्ज मुल्क में चढ़ गया है वो इसलिए चढ़ गया। और चीनी कंपनी जो है, चीनी हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, चीनी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। चीनी हुकूमत तो हमारे साथ मुखलस है, वो तो बदनाम जमाना कंपनियां हैं, और वो उसका हारून रशीद साहब, कता कलामी की माजरत। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। शाह साहब फरमाइएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में तमाम तर मलबा आप पर डाल दिया, आपकी हुकूमत पर डाल दिया कि आपकी हुकूमत ने महंगाई बढ़ाई, आपकी हुकूमत में तरक्की नहीं हुई, आपने दोस्त ममालिक को नाराज़ किया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो तो फितरी सी बात है। अपनी कोताहियों का जिक्र तो कोई नहीं करता। हम ने भी यही कहा कि जब हम आए थे तो जो अदाद शुमार हमारे सामने थे, जो 20 अरब का जो एक फिस्कल डेफिसिट, ये जो एक होल छोड़ गए थे, हमें अंदाजा है कि हमने इसको कैसे फिल किया। देखिए, आज की तकरीर क्या थी? इन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाई है, 30 रुपए डीजल, पेट्रोल, केरोसिन बढ़ाया है, और उसका शदीद रद्द-ए-अमल आया है। लोग चिल्ला उठे हैं, और उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने सारा मलबा जो है वो हमारी हुकूमत पे डाला है। ये कौम को बताने से कासिर हैं कि हमने तो लोगों को रिलीफ देने के लिए पैसे इधर से काट उधर से काट सेविंग में निकाल कर हमने फैसला किया था कि जून तक हम कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ हमने रूस के साथ गुफ्तगू शुनीद शुरू कर दी थी कि सस्ते दामों वहां से तेल हासिल किया जा सके और लोगों को रिलीफ दिया जा सके, और उसमें मजीद बोझ न डाला जा सके। इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि वो उसको परसू करेंगे, उसके हसूल में वो दिलचस्पी रखते हैं नहीं रखते।
फिर उन्होंने मरासले का जिक्र किया। मरासले का जिक्र कई मर्तबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कर चुकी है। आपने 48वें इजलास की सदारत मौजूदा वजीर आजम ने खुद की थी और उन्होंने जो उसकी फाइंडिंग्स थी उससे इनकार नहीं किया। तो आज उसको भी एक नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा, उन्होंने ये भी कहा कि आईएमएफ से डील तो आपने की थी, तमाम मामलात आपने तय किए, उन्होंने तो बस साइन किए, ये जो कुछ हुआ ये आपकी वजह से हुआ। अर्ज ये है कि नई हुकूमत आई है, अगर उनको उस डील में कोई कबाहत दिखाई दे रही थी तो मिफ्ता इस्माइल साहब जब न्यूयॉर्क गए, जब दोहा गए, तो उसमें कोई बेहतरी के लिए कोशिश करते। अगर बेहतरी वो नहीं कर सके और अगर उन्होंने वही कुछ करना था जो माजी में तय हो चुका था, तो फिर ये तनकीद किस बात की कर रहे हैं, ये मलबा किस पे उंडेलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा शाह जी, ये फरमाइएगा, ये भी उस पर कहा जा रहा था कि शायद ये ऐलान हो कि ये हुकूमत कब तक चलेगी, उनका क्या फैसला होगा, इस तरह का कोई ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने आइंदा बजट के हवाले से भी जिक्र कर दिया कि आइंदा बजट में भी रिलीफ होगा। तो ऐसा लग रहा है कि अभी फौरन तौर पर वो हुकूमत छोड़ने के हक में नहीं है। तो आपका लाहेअमल क्या होगा इस हवाले से? देखिए, कल हमारी कोर कमेटी का इजलास है, हमने नई सूरत हाल को डिस्कस करना है और कल कोर कमेटी का इजलास होगा, पेशावर में होगा। कल खान साहब ने उसका 2:30 बजे का टाइम दे रखा है। लोग आएंगे, लोगों से मशावरत की जाएगी और मशावरत के बाद हम आगाह करेंगे अपने अगले लाएअमल के बारे में। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये तमाम तर मलबा डाला गया, लेकिन ये भी बात कि वो कहते हैं कि आईएमएफ से ये तमाम तर मामलात तो ये डील करके गए और हमें फंसा के गए हैं, पेट्रोल इसलिए सस्ता किया था। तहकीक करें तो उन्हें ये भी मालूम हो जाएगा कि दुनिया में जो पहला कत्ल हुआ था काबिल ने किया था अपने भाई हाबिल का, उसमें भी इमरान खान मुलव्वस थे। क्या बच्चों की सी बातें हैं। तो भाई उसने 3.5 साल तो हुकूमत की है, उसने आपको बताया कि कोरोना था और -7% चला गया इंडिया और यहाँ 5% है। और ये नवाज शरीफ साहब के अदवार की मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि उनके अदवार की औसत जो है 3.5-4% से ज्यादा नहीं निकलेगी। तो बाकी ये रिटारक है, अब रिटारक में हम क्या गुफ्तगू करें, या तो कोई डेटा दें। जो सड़कें बनाई हैं इमरान खान ने, यानी इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इतनी हाई है, डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई है, कदर इतनी बढ़ गई है, इसके बावजूद वो कम कीमत पे बनी है। और ये भी कभी दुनिया में मसखरापन हुआ है कि सड़क जो है पिंडी से लाहौर तक वो तो है 290 किलोमीटर और इन्होंने जो मोटरवे बनाई है वो से 70-80 किलोमीटर ज्यादा है। और चीनी कंपनियों के साथ जो फायदे आपसे अर्ज किया है वो हमें मालूम ही नहीं है क्या है। और चीनी कंपनियां, जो चीनी हुकूमत में चीनी कंपनियां बदनाम है। अब शहबाज शरीफ साहब जैसे आदमी के रिटायरमेंट का कुछ क्या जवाब दे, ये नहीं कि हमें फंसा के चले गए। पेट्रोल पे तुम पहले दिन आओ, अगर बढ़ाने हैं, मैं मुसलसल कहता रहा, आपके इल्म में होगा, हर रोज मैं कहता रहा भाई बढ़ानी तो आपने है तो अभी बढ़ा दें। कोई तो आदमी फैसला कर चुके ना। पाकिस्तान में एक तकरीरी मुकाबला हो रहा है, फैसले तो नहीं हो रहे। हारून साहब, ये फरमाइएगा, हुकूमत की मुद्दत की बात नहीं की शहबाज शरीफ ने, आपको क्या लग रहा है अभी भी बैकडोर मामला चल रहे हैं कहीं? वो तो देखिए ना, पॉलिटिकल साइंस का एक उसूल है कि जब इवेंट्स टेक ओवर कर लेते हैं, यानी हालात हाथ से निकल जाते हैं, हिस्टोरिकल फोर्सेस अनलीश हो जाती हैं, तो कोई फैसला नहीं करता। वैसे भी सिचुएशन ज्यादा अहम चीज होती है, शख्सियात या पार्टियां अहम नहीं होती उतनी जितनी होती है अहम, सिचुएशन डिक्टेट करती है। तो ये बहस जारी है। नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे 20 मई को छोड़ दें, फिर उनसे कहा गया, रिक्वेस्ट की गई, तो फिर पॉलिसी बदली गई। तो मतलब ये कोई मुश्किल है, ऐसी सिचुएशन में प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता कि कब तक होगा। मुझे ऐसा लगता है, अगर कि ये इतनी दूर का अंदाजा लगाना नहीं चाहिए, कि फरवरी मार्च में हो जाएंगे। ठीक है, हारून साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राव खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है
एक जो तमाम तर सूरत हाल चल रही थी उस पर ये सोचा जा रहा था कि कब ऐलान होगा। राव खालिद साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया। हारून रशीद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमाइएगा कि अब मार्च और अप्रैल तक अगर आप देख रहे हैं या जनवरी फरवरी तक इसको अगले साल तक आता हुआ देख रहे हैं, तो इमरान खान तो कह रहे हैं कि 6 दिन तक अगर ऐलान ना किया तो मैं फिर सड़कों पर निकल आऊँगा। तो फिर इमरान खान के लिए फेस सेविंग के लिए कोई चीज़ तैयार की जा रही है? क्या चीज तैयार की जा रही है? इमरान खान अगर 6 दिनों बाद सड़कों पर आते हैं तो फिर हुकूमत किस तरह डील करेगी उनको? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। वैसे तो ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि लोगों का बुनियादी हक है एहतजाज करना। तो ये अगर इसके बावजूद इस दफा आपको पता है कि जेलों से लोग लाए गए, गुंडे लाए गए और सफेद लिबास में, आम लिबास में पुलिस वाले थे और कुछ वैसे पुलिस वाले थे। और वो देखे आपने मनाजर, ये लोगों ने बर्दाश्त इसको कर लिया लेकिन इसके बाद नहीं लोग करेंगे और लोग तशद्दुद की तरफ भी जा सकते हैं। इसकी प्राइस बहुत हाई होती है इन चीज़ों की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो कहीं ज़्यादा स्टेट क्राफ्ट को समझते थे, लेकिन फिर क्या अंजाम हुआ था उनका जब वो नट फोर्स उन्होंने बनाई थी, जब एक दिन में 22 आदमी कत्ल हो गए थे लाहौर में, तो फिर क्या नतीजा निकला था। लेकिन ना अभी चंद दिन के अंदर अंदर इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन ज़्यादा मजबूत हो गई है, वो मुदाखलत करने के काबिल हो गई है। तो वो इमरान के 6 दिन का मतलब ये नहीं है कि वो 7वें दिन, 6ठे दिन जाहिर है वो टाइम देंगे। ठीक है, यानी 6वें दिन फिर वो देखेंगे कि क्या फैसला करना है। हारून साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद कैसर साहब, फरमाइएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया, उन्होंने जो रिलीफ पैकेज और जो महंगाई का पैकेज आवाम को दिया है उस पर वजाहतें भी दी और बताया कि किस तरह आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन जो महंगाई का तमाम तर मलबा है वो उन्होंने आपकी हुकूमत पर डाला है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये आज से तकरीबन जब हमारी हुकूमत से थोड़ी देर पहले उन्होंने महंगाई मकाम मार्च किया, अभी मुफ्ता इस्माइल की तमाम तकारीर निकाले इससे पहले और अभी का उसका मुआवजा करें। यानी वो एक तरफ तो कह रहे थे कि हम महंगाई कर रहे हैं, हम IMF के एजेंडे को हम तस्लीम कर रहे हैं और वो हमारे खिलाफ पूरा मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के भी अपोजिशन सारे बात कर रहे थे। इसके बावजूद कि हम कोरोना के एक बहुत मुश्किल दौर से होकर गुजरे थे और कोरोना आपको पता है कि इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जो है हिला के रख दिया। इसके बावजूद कोरोना को हमने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। इसके बावजूद भी हमने कम से कम जो उसके असरात से आवाम पर डाले। इसके बावजूद कि हमने एहसास प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जो है ना आवाम को रिलीफ दी, 12,000 रुपए उसको मिले, लंगर खाने बने और सबसे बड़ा जो है ना सेहत कार्ड एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया। मुझे बताएं कि ये अब सारे पार्टियां शामिल हो के हमारे ऊपर तनकीद कर रहे थे, हमारे खिलाफ ये सबसे ज्यादा कंपेन कर रहे थे कि ये जो ना IMF को क्यों कर रहे हैं। तो आज ये किस खातिर जो ना IMF के पास है, इसके पास क्या एजेंडा है। इमरान खान ने तो जुर्रत का मुजाहरा किया और जुर्रत का मुजाहरा ये किया कि वो रशिया गया, इसलिए गया कि अपनी कौन के लिए कोई रिलीफ लेकर आए, कोई जो सस्ती तेल उसको मिले 30%, और उसकी वजह से जो उनके साथ हमारी नेगोशिएशन जारी थी उसकी वजह से ये सारा कुछ हमने इसलिए किया कि हम जो है ना जून तक कोई कीमतें में इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन अगर शहबाज शरीफ की कोई क्रेडिबिलिटी है तो आप इनकी असेंबली की तकारीर निकालें, इनकी आप निकालें कि जो हमारी हुकूमत से पहले उसकी जो मौक़िफ़ था, उनकी मिनिस्टर का जो मौक़िफ़ था और अभी उनका जो मौक़िफ़ है वो उनके सामने आ जाएगा। बहरहाल ये फंस गए हैं बहुत बुरी तरह। इन्होंने साजिश की लेकिन साजिश जो है ना उसके पल्ले पड़ गई। अभी इनको समझ नहीं आ रही कि हम इकोनॉमी को कैसे संभाले। ये चू का मुरब्बा है, एक बात करते दूसरा दूसरी बात करता है। ये और अच्छे ही हुआ कि इन्होंने तो हमारे खिलाफ साजिश की। अच्छा, लेकिन ये एक्सपोज हो गए पूरी कौम के सामने कि झूठ बोल रहे थे, इसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है असद कैसर साहब, ये फरमाइएगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी साजिश को मुस्तरद किया है। आप पिछली हुकूमत में स्पीकर कौमी असम्बली रहे, आपने वो खत भी देखा है, आप क्या बताएंगे उस हवाले से? हेलो असद कैसर साहब, आप तक आवाज आ रही है तो बताइएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी साजिश को मुस्तरद किया है, आप पिछली हुकूमत में स्पीकर थे, आपने वो खत भी देखा हुआ है, आप क्या अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं? देखिए, मैं बाई ओथ कहता हूँ, जो खत मैंने पढ़ा है, जो मैंने
मुझे मिला था उसने कैटेगरिकली धमकी दी थी, और ये धमकी इस बात की थी कि अगर इमरान खान को आप नहीं हटाएंगे तो हम जो है ना आपके खिलाफ आप जो है ना इसकी रिपरकशन अपने काबू पर होंगे, आप इसको फैसला नहीं। असद कैसर साहब, आपकी आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही थी, दोबारा फरमाइएगा इस हवाले से। हमारा राब्ता असद कैसर साहब से मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। हारून रशीद साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरह अभी असद कैसर साहब फरमा रहे थे, उनसे पूछा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अमरीकी साजिश को मुस्तरद किया है, और ये जो तमाम तर, और इससे पहले भी वो ये बयान रख चुके हैं, आपको क्या लगता है इस तमाम तर क्या सूरत हाल है? हारून रशीद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज की इस तकरीर के हवाले से और जो रिलीफ पैकेज दिया गया उस हवाले से जान लेते हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया है, जो पेट्रोल महंगा किया था उस हवाले से भी उन्होंने आगाह किया है, आप कैसे देख रहे हैं इस पैकेज को? उन्होंने तो रिलीफ दिया है आवाम को महंगाई के बाद। देखिए जी, मुझे एक तो समझ नहीं आती, पहले ये कहते हैं कि जी आपने रिलीफ दे दिया, हमारे पास तो पैसे नहीं थे, आपने कैसे ये रिलीफ दे दिया। फिर इन्होंने उठा के 336 अरब रुपए की रिलीफ दे दिया है पूरे साल का, तो ये 336 अरब कहाँ से आएंगे? तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये तो इसका मतलब है जो हम पैसे रख के गए थे, ये तो वही पैसे हैं, वही यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, ये सीधी सीधी बात करें कि इनके हाथ पांव फूले होते शुरू में, और जो हम दे के गए थे रिलीफ, हमारे पास पैसे भी थे, वो हम ये उसको यूज करते और ये उस पर पॉलिटिक्स ना खेलते। लेकिन अब इन्होंने खेल लिया, तो इनको 336 अरब रुपया भी गले में पड़ गया, ये भी देंगे, और जो है ये BSP का जो बाकी जो दे रहे हैं वो भी देंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये किस किस्म की बचत इन्होंने की है जिसको उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान को बचा के। शौकत तरीन साहब, ये फरमाइएगा, उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोल की कीमत जो हमने बढ़ाई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो IMF से मुआहदा किया था उसके मुताबिक हमें मजबूरन बढ़ाना पड़ी है। मैंने तो जो बढ़ाई थी वो पूरी अकाउंटिंग करके दे के आया था IMF को, 466 अरब रुपया हमें खर्च होना था, वो मैंने पूरा, और ये उसी में से 336 भी उसी में से कर रहे हैं, वो करके आया था। और दूसरा ये है कि हमने जाना था रूस के साथ, हमारा जो है वो अंडरस्टैंडिंग, हमने 30% हमने डिस्काउंट देना था, जो 42 रुपये फी लीटर एज अ माह होना था, तो ये 30 रुपये से ज़्यादा था, वो रिलीफ होना था हमें। और उसके बाद हमने टारगेटेड सब्सिडी करनी थी, हमने 4 महीने के लिए सिर्फ हमने टारगेटेड सब्सिडी करनी सिर्फ मोटरसाइकिलों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए, और उसके ऊपर हमारे जो खर्चा जो था वो कम होना था। तो उस लिहाज से हमें IMF के साथ कोई इशू नहीं होना था। इन्होंने आते ही शोर मच, पहले तो उन्होंने कहा कि बढ़नी नहीं चाहिए, जब ये हुकूमत में नहीं थी। रस्ता साहब कहते थे 1 रुपया बढ़ाएंगे तो हम आ जाएंगे उसके ऊपर, स्ट्रीट पे आ जाएंगे। खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जी जो असल प्राइस जो है वो तो 70 रुपये फी लीटर है, और बाकी लोग भी बहुत कुछ कहते रहे। जब वापस अंदर आए तो इन्होंने कहा जी ओहो ये तो सस्ता करके चले गए, हमारे लिए मुसीबत डाल गए, और इनके हाथ पांव फूल गए। ठीक है, इनके हाथ पांव फूल गए, इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से मईशत को संभाला जाए। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़िया कार राव खालिद साहब और हारून रशीद साहब भी मौजूद थे और अपने तज्ज़िये से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।